Hello everyone, this is Professor Ram Guge and once again I welcome all of you on my YouTube channel. So in my last video I talked about the natural way of developing speaking skills, and in that video I mentioned that I'm gonna speak about all the 4 basic skills of English language. So when we try to understand how language can be developed, the first skills which come in front of our eyes, that is listening skills, because everyone is aware about the fact that they learned any language of this world. I mean, the person who is born in which country, place and region and dialect and language, that person acquired that language naturally without any artificial effort as such. But when time comes to learn the second language, we find it more difficult comparatively, and that's why the listening is the basic skills which required to develop any kind of language, and it's very important skills in the communication also, because communication is a two-way process and 50% part is depend on listening. How much effective listener you are, that defines whether the communication is going to be effective or not, and therefore it becomes essential for the educator, students. They must have to develop the listening capability and listening ability so that they can easily deal with the corporate culture, corporate world, professionalism, job and everything else. And therefore today I am going to talk about the basic listening, what exactly listening skill means, what are the stages of listening skills, and what are the types of listening skills, and what exactly it has its space in the corporate, business or professional and even personal for that matter world. So first of all, I would like to tell you that listening is a very essential skills which make you more stronger in the your field where you are studying, where you are doing anything else, because it give you a lot of opportunity in future to grow or excel on the path of career. So without further delay, let's begin with the PPT. So through PPT I will theoretically define the listening skills, and consequently I will talk about the very essential aspect of listening skills and types and all that. So let's begin with the PPT now. So we are here, and as I told you that we are going to talk about listening skills, and this is lesson in the syllabus of communication skills for the B Pharmacy, and the students can prepare for their examination from this video also. So listening, what is listening skill, that is the first question. पहले हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली क्या लिसनिंग स्किल्स होता है, इसमें कौन से स्टेजेस इन्वॉल्व है, क्या एग्जैक्टली प्रोसेस है और इसको हम किस तरीके से आगे लेके जा सकते हैं. तो पहले डेफिनेशन और इसको अंडरस्टैंडिंग समझने की कोशिश करते हैं. व्हाट एग्जैक्टली द लिसनिंग स्किल इज. तो यहाँ पे दिया है, इट इज एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज बीन सेड. यहाँ पे 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला है रिसीविंग और दूसरा है अंडरस्टैंडिंग. तो पहले हम क्या करते हैं, जो भी लैंग्वेज हम जो भी बात कर रहा है इंसान, वो आइदर किसी ना किसी लैंग्वेज में बात कर रहा है, राइट. तो उनके साउंड्स को हम रिसीव करते हैं. दैट इज द फर्स्ट स्टेज इन द लिसनिंग प्रोसेस. तो पहला स्टेज है कि साउंड्स को जैसा बोला है उस तरीके से रिसीव करना. साउंड जब इंसान बात करता है तो साउंड प्रोड्यूस करता है, उसको हम रिसीव करते हैं. और सिर्फ रिसीविंग को लिसनिंग नहीं बोलते, वो गलत कभी नहीं करना, क्योंकि लिसनिंग इज अ मोर कॉग्निटिव ब्रेन एक्टिविटी and it has many stages. We will try to understand all of these stages from this video. But साउंड को रिसीव करना, उसको सिर्फ हियरिंग बोलते हैं. हियरिंग मतलब सुनना, जो भी अपने कान तक आ रहा है वॉइस, उसको सुनना, लेकिन उसका सुनने का इंटेंशन बाकी और कुछ नहीं, जैसे समझना है, उसके आगे जाके उसको इवैल्यूएट करना है, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं. जो आवाज़ क्रिएट हो रही है वो अपने कान तक आ रही है, उतना ही मतलब होता है हियरिंग का. ठीक है. तो 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक साउंड को रिसीव करना और दूसरा उसको अंडरस्टैंड करना. और सिर्फ साउंड को ही रिसीव करना नहीं, उसके साथ साथ एक्सेंट, फीलिंग्स,
साउंड्स ऑफ पिच मतलब इंटोनेशन पैटर्न, कैसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है या फिर मध्यम और मीडियम लेवल पे बात कर रहा है। एग्जैक्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट। इंटोनेशन पैटर्न क्या है और उसके साथ फीलिंग को भी समझना है कि वो नर्वस है या हैप्पी है, किस तरीके से बात करना है। ये पूरी प्रोसेस लिसनिंग स्किल्स में होती है। आगे चलते हैं। We need to understand 3 things to know about listening skills. The first thing is receptive skill. Listening is a receptive. Language में 4 skills होते हैं, वो है listening, reading, speaking and writing. इसमें से 2 skills receptive डोमेन में आते हैं, 2 आते हैं प्रोडक्टिव डोमेन में। तो रिसेप्टिव स्किल्स जो होते हैं उसमें हम सिर्फ समझने की कोशिश करते हैं, और वो 2 स्किल्स है, एक लिसनिंग और दूसरा रीडिंग। ये 2 काम करते वक्त हम सिर्फ समझने की कोशिश करते हैं, और रिस्पॉन्ड करते वक्त हम एक तो बोलते हैं, उसको स्पीकिंग स्किल बोलते हैं, और दूसरा हम लिख के बताते हैं, कुछ कम्युनिकेट करते हैं, उसको राइटिंग स्किल्स बोलते हैं। तो लिसनिंग रिसेप्टिव डोमेन में आता है। दूसरा, एलिमिनेट्स कम्युनिकेशन एरर। अगर लिसनिंग बेहतरीन है तो ऑब्वियसली आपके कम्युनिकेशन में जितने भी एरर्स हैं वो सारे निकल जाते हैं, क्योंकि इसके साथ बहुत सारी बातें जुड़ी हुई है। द ग्रेट स्पीकर इज द वन हु इज अ ग्रेट लिसनर फर्स्ट। जो बहुत अच्छा श्रोता है वही बहुत अच्छा वक्ता बन सकता है, राइट। ये एक कहावत है और वो सही है। और ये एक्टिव प्रोसेस है, ये ब्रेन से रिलेटेड है। कॉग्निटिव डोमेन में लिसनिंग स्किल आता है, क्योंकि समझने के लिए हमें ब्रेन में जो भी साउंड को हमने रिसीव किया है उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, राइट। तो ये एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव नहीं है। आगे चलते हैं। वाई डू वी लिसन? क्योंकि सुनना है, पर सुनने के लिए कुछ पर्पस तो होना चाहिए, कुछ मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जब हम सुनते हैं तो पहले हम जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, जिस चीज़ में हमें ज़्यादा रुचि है, ऐसी अगर चीज़ कोई बोल रहा है, बता रहा है, तो ऑब्वियसली हम लोग उसको बहुत अच्छी तरीके से सुनते हैं, राइट। इंसेंटिव का मतलब है कि जब इस बात को सुनने के बाद हमें कुछ मिलने वाला है, ऐसा कुछ है, तो डेफिनेटली हम उस चीज़ को सुनते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि टीचर ने एक लेसन पढ़ाया है और उन्होंने कहा है कि इसको पूरी तरीके से दोबारा ब्रॉडकास्टिंग इसका देखो, वीडियो देखो, और कल इसके ऊपर हम एक एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे और उसके बेसिस पे आपको ग्रेड दिए जाएंगे। तो आपको इंसेंटिव यहाँ पे क्या मिल रहा है? ग्रेड्स मिल रहे हैं। तो उसकी वजह से आप लोग चाहे किसी भी हालात में हो तो उसका पूरा प्रिपरेशन, उसको 2 बार 3 बार सुनने के बाद आप क्लास में जाओगे और एग्ज़ाम को अपीयर करोगे। तो इंसेंटिव जब पर्पस होता है तब हम अटेंटिवली लिसन करते हैं। तीसरा पॉइंट है इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग। कुछ बातें हैं जो कि ऊपर के 2 कैटेगरी में नहीं आते हैं, बट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है उनको समझना। जैसे कि अभी एग्ज़ाम किस तरीके से होगा अंडर कोविड का जो भी चल रहा है, उसमें एग्ज़ाम किस तरीके से होगा, उसका कुछ रूल्स नियमावली दिया है, उसको समझना है। तो ऐसे इंफॉर्मेशन को जब हम समझते हैं तो उसके लिए, क्योंकि जो चीज़ हमें इम्पॉर्टेंट लगती है, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत लगती है, ऐसी चीज़ समझने के लिए हम लिसन मतलब सुनते हैं। और लास्ट कैटेगरी है एंजॉय। लिसनिंग तभी फ्रूटफुल होता है, तभी हेल्दी होता है जब हम उसको एंजॉय करते हैं। जैसे कि हम लोग कुछ अपने पसंदीदा सॉन्ग सुनते हैं, हिंदी गाने सुनते हैं, इंग्लिश बॉलीवुड के गाने सुनते हैं, तो गाने सुनते वक्त हम उसको एंजॉय भी करते हैं, तो दैट इज़ प्लेजरेबल लिसनिंग, राइट। तो ये इस पर्पज़ के लिए हम लोग सुनते हैं। नहीं तो हमारे घर के पास से एक ट्रेन का पटरी जा रहा है और उसके ऊपर से ट्रेन जब जाता है तो वहाँ से भी आवाज़ निकलता है, जिसको वो आवाज़ हम इंटेंशनली नहीं सुनते, वो साउंड क्रिएट हो रहा है और हमारे कान तक आ रहा है, उतना ही उसका पर्पज़ है, राइट। पॉसिबल रीज़न टू इन्वॉल्व इन लिसनिंग स्किल्स। तो ये पॉसिबल रीज़न है, इसकी वजह से हम लोग सुनना चाहते हैं किसी चीज़ को, ठीक है। आगे चलते हैं। स्टेजेस ऑफ लिसनिंग स्किल्स। हम लोग इतना ही समझते हैं कि सुनना मतलब क्या, कोई हमारे सामने से बात कर रहा है और उनकी बात को हम सिर्फ जो भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम रिसीव करेंगे, उतना ही लिसनिंग स्किल है। ऐसा बहुत सारे लोगों का समझ है, पर ऐसा कुछ नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। सो लिसनिंग हैज़ 5 stages. The first stage is hearing,
the second stage is understand, third one is remember, and the fourth one is evaluate, and the last one is respond. So we do all of these things within a minute, but we don't know actually we are doing all of these things. Now one by one, एक एक करके हम इस एक एक स्टेज को समझने की कोशिश करेंगे, और तब जाके आप लोगों को समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें हर कोई सुनने वाला करता है अपने सुनने की प्रोसेस में, राइट। तो पहली स्टेज जो है वो है हियरिंग। तो हियरिंग में क्या करते हैं, देखो, इस ऑल्सो नोन एज रिसीविंग। तो जो भी आवाज़ निर्माण हो रही है वो हमारे कान तक आना, उसको, ये सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी है, सुनना सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी है। बहुत सारे लोग सुन भी नहीं पाते हैं, तो उनके लिए पॉइंट वैलिड भी नहीं है। जिन लोगों के कान काम कर रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उन लोगों का ये सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी होगा। Beyond that, it doesn't have any value and meaning as such, right? The next point is delivering sounds to brain. तो hearing में क्या होगा, जब हम किस आवाज़ को सुनते हैं तो आवाज़ ट्रांसमिट करते हैं ब्रेन तक, उतना काम हमारा हियरिंग में होता है। और ये कभी इंटेंशनल नहीं होता है। जैसे कि स्कूल चल रहा है, टीचर पढ़ा रहे हैं, तो टीचर को जब हम सुनते हैं तो अटेंटिवली हम उनको सुनते हैं, वो जो जो वर्ड बता रहे हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसी टाइम पे स्कूल के बाहर कोई आवाज़ निकाल रहा है, कोई कुछ बातें कर रहे हैं, तो उनके ऊपर, और कोई ट्रक या कोई जहाज वहाँ से गुजर रहा है, तो उसकी बहुत बड़ी नॉइज़ आती है, तो उसको हम इंटेंशनली सुनते नहीं है, राइट। तो हियरिंग कभी भी इंटेंशनल नहीं होता है, अनइंटेंशनल होता है। जो कि साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, हम तक आ रहा है, दैट्स द ओनली थिंग इन द हियरिंग। तो अंडरस्टैंडिंग में हम लोग क्या करते हैं कि ये ब्रेन वाला एक्टिविटी है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, और हम लोग इसको ब्रेन प्रोसेस करते हैं। जो भी हियरिंग से हमारे पास आया है तो वो हमने ब्रेन को ट्रांसमिट किया है, और जब ब्रेन में ट्रांसमिट किया जाता है तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर की तरह लैंग्वेज का स्ट्रक्चर होता है ब्रेन में। तो वो लैंग्वेज स्ट्रक्चर यूटिलाइज करके उन वर्ड्स को हम अपने जो भी सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर ब्रेन में है, उस तरीके से उसको समझने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए ये कॉग्निटिव डोमेन में आता है, यानी ब्रेन, मेंटल एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग। और जब इतना प्रोसेस करते हैं तब हमारा थीम ऑफ मैसेज, मतलब जो भी बोला गया है उसका एक मैसेज हमें समझ में आता है। स्कीमा में अफेक्ट अंडरस्टैंडिंग। समटाइम्स कैसे होता है कि ये कोई ब्लैंक माइंड तो नहीं है, हम बड़े हैं तो हम लोगों ने बहुत सारा एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, तो कुछ एक्सपीरियंसेस अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, तो हमारे माइंड में एक स्टिग्मा या एक स्कीमा फिक्ट है कि उस पर्सपेक्टिव से ही हम समझने की कोशिश करते हैं। और कभी कभी अंडरस्टैंडिंग, वो लेवल का अंडरस्टैंडिंग अपने कम्युनिकेशन पे अफेक्ट कर सकता है। गुड अंडरस्टैंडिंग में ऑल्सो इंटरप्रेट द होमोफोन्स इन कॉन्टेक्स्ट। तो होमोफोन्स इंग्लिश में क्या होता है कि एक लैंग्वेज का पार्ट है, जैसे ड्रॉ ए वर्ड है, तो ड्रॉ का इस्तेमाल कई चीज़ के लिए किया जाता है। एक तो ड्रॉ पिक्चर ऑन द बोर्ड, तो इसमें ड्राइंग निकलना, ऐसे इसका मतलब होता है। दूसरा वर्ड है ड्रॉ द टेबल हियर, तो यहाँ पे ड्रॉ द टेबल हियर का मतलब टेबल को यहाँ खींचो, सो ड्रॉ का मतलब यहाँ पे खींचना होता है। तो इस तरीके से होमोफोन्स को कॉन्टेक्स्ट में समझने की प्रोसेस हम अंडरस्टैंडिंग में करते हैं। आगे चलते हैं, रिमेंबर। थर्ड स्टेज जो होता है वो होता है रिमेंबर। जब तक हम कुछ चीज़ को रिमेंबर नहीं करते तो उस चीज़ को हमने समझा है ऐसा उसका मतलब नहीं होता है, वो तो सिर्फ रिसीविंग स्टेज में चला जाता है। तो रिमेंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, और यू हैवंट एक्चुअली लिसन्ड इफ़ यू डोंट रिमेंबर इट। तो आपने अगर याद नहीं रखा जो भी सुना है तो उसका मतलब ये होता है कि आपने उसको समझा ही नहीं है, वो डायरेक्ट फर्स्ट कैटेगरी में चला जाएगा जहाँ पे सिर्फ रिसीव करते हैं आप लोग साउंड्स और उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। और रिमेंबर का एक अच्छा तरीका ये है कि मेमोरी बनाना। जैसे कि कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं हमारे लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए बहुत स्पेशल होते हैं, और वो चीज़ हम लाइफ टाइम हमारे मेमोरी में फिट हो जाती है। तो इसको स्पेशल बनाना है, तभी रिमेंबर होता है। अब एक एग्जाम्पल देखा जाए तो लेक्चर जब होते हैं तब हम एग्ज़ाम तक उसको रिमेंबर करने की कोशिश करते हैं,
वो स्पेशल नहीं होता, मेमोरी नहीं होता, बट ये एक प्रोफेशन है। स्टूडेंट बोल के हमको एग्जाम तक एटलीस्ट रिमेंबर करना है, उसको मेमोरी में रखना है। तो ये इस तरीके से तो हमें रिमेंबर भी करना पड़ेगा। फोर्थ स्टेज जो होता है इवैल्यूएशन, इसका मतलब मूल्यमापन, आप उसका जजमेंट करोगे। मतलब ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, जब आपके कान तक जो भी साउंड्स आ रहे हैं उसके बाद आप उसको समझ रहे हो, समझने के बाद किसको आप ध्यान में रखना है किसको नहीं रखना है ये रिमेंबर में कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ आप जो बोलने वाला है उसको जज भी कर रहे हैं। और जजिंग इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस, वो कंटिन्यूस चालू रहता है, हम लोगों को समझ में नहीं आता। इवैल्यूएशन ऑफ डायलेक्ट, फीलिंग्स, इंटेंशंस, इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें हम इवैल्यूएट करके कैसे करते हैं। देख, डायलेक्ट का मतलब होता है कि रीजनल वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, जैसे कि अभी इंडियन इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश है, ब्रिटिश इंग्लिश है, देयर आर सो मेनी वैरायटीज ऑफ इंग्लिश। सो वी अंडरस्टैंड किस डायलेक्ट में वो बात कर रहा है। उसके बाद हम क्या इवैल्यूएट करते हैं, वो बोलते वक्त डरा हुआ है, कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है, उसकी फीलिंग्स, स्पीकर के फीलिंग्स को हम इवैल्यूएट करते हैं। इंटेंशन, किस मकसद से ये टॉक कर रहा है, किस मकसद क्या है इसके पीछे, और ये टॉक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो इतना सारा हम इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएशन डिसाइड्स इफ यू वांट टू कंटिन्यू टू लिसनिंग और नॉट। तो हमारा इवैल्यूएशन जो है, अगर बात हमारे काम की हो रही है तो ऑब्वियसली हम लोग उस बात को सुनेंगे, लेकिन अगर किसी भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात जा रही है तो ऑब्वियसली हम उस बात को क्यों सुने, ये इवैल्यूएशन से हमें पता चलता है। और लास्ट स्टेज जो होता है वो होता है रिस्पॉन्ड, यहाँ पे नहीं है। ये सब करने के बाद हम जब किसी को सुनते हैं तो हर बार ये जरूरी नहीं है कि बात से बात ही रिस्पॉन्ड हो सकती है, जैसे कि हाँ मैंने सुना है, ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं। आपकी इतनी बॉडी लैंग्वेज है जिसके ज़रिए हम 93% ऑलमोस्ट कम्युनिकेशन करते हैं। 55% कम्युनिकेशन तो बॉडी लैंग्वेज से होता है और बाकी का टोन ऑफ वॉइस से होता है। तो 55% में आप लोग हेड नॉडिंग से सिग्नल दे सकते हैं स्पीकर को कि आपने समझ लिया है। तो ये रिस्पॉन्ड बहुत ज़रूरी है, तभी अटेंटिव लिसनिंग होता है, अदरवाइज लिसनिंग पॉसिबल नहीं है। अब कितने प्रकार की लिसनिंग है, टाइप्स ऑफ लिसनिंग, देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग, सेलेक्टिव लिसनिंग एंड इग्नोरिंग लिसनिंग, और उसको हम ऐसे भी बोलते हैं कि पैसिव लिसनिंग, राइट, पैसिव लिसनिंग। तो ये 3 प्रकार तो है, लेकिन इसके साथ बहुत और भी प्रकार है, लेकिन सिलेबस के और जो मेजर टाइप्स होते हैं तो उतने 3 हैं, और बाकी के क्रिटिकल थिंकिंग और उसके बाद में डिस्क्रिमिनेटिव थिंकिंग, बहुत सारे प्रकार हैं, हम देखेंगे आगे आगे। तो एक्टिव लिसनिंग क्या होता है? तो एक्टिव लिसनिंग मीन्स you are physically and mentally in the present moment with that speaker, and you are trying to listen each and every word with proper care, and you are trying to understand, remember, and you just want to follow all the stages of listening skills. That is called active listening. तो इसमें all stages involved होती हैं। तो हमने अभी डिस्कस किए 5 स्टेज, तो ये 5 स्टेज एक्टिव लिसनिंग में इन्वॉल्व होती हैं। प्रॉपर लिसनिंग, बहुत ही पोलाइटली हम स्पीकर जो भी बात कर रहे हैं उनको सुनने की कोशिश करेंगे। प्रॉपर फीडबैक आप वर्ड में भी दे सकते हैं, यस आई गॉट इट, या आई अंडरस्टूड, यस दैट्स एब्सोल्युटली राइट, इस तरीके से कमेंट देके, नहीं तो फिर आपके बॉडी लैंग्वेज के जरिए, आई कांटेक्ट के जरिए आप लोग फीडबैक दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए, टीचर्स डू वाइल स्टूडेंट्स प्रेजेंट अ टॉपिक और जजेस इन स्पीचेस। तो टीचर एक्टिव लिसनिंग मतलब अगर क्लास में टीचर ने 10 स्टूडेंट को एक टॉपिक दिया है प्रेजेंटेशन के लिए, और जब प्रेजेंटेशन होता है तो टीचर बहुत ही प्रॉपरली सुनते हैं सब कुछ, उसके बाद वो प्रॉपरली फीडबैक भी देते हैं इवैल्यूएट करके। तो ये पूरा ऑल स्टेजेस उसमें इन्वॉल्व होता है। सेलेक्टिव लिसनिंग क्या होता है कि कभी कभी प्री डिसाइडेड भी होता है कि मुझे क्या करना है एक्चुअली वही मैं करूँगा, बाकी होल थिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सेलेक्टिव स्टडी भी होता है हमारा, जैसे कि अभी पूरा सिलेबस तो है एग्ज़ाम के लिए, लेकिन यूनिट टेस्ट 1 में सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा, तो पूरा सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उस तरीके से हम जो भी वीडियो सुनेंगे, जो भी देखेंगे वीडियोज़,
तो उसी सिलेबस से रिलेटेड देखेंगे, बाकी सब नहीं देखेंगे। उसको सिलेक्टिव बोलते हैं। ये कभी कभी प्री डिसाइडेड होता है क्योंकि हम तय करते हैं एग्जैक्टली हमें क्या करना है। रिमेम्बरेंस ऑफ सिलेक्शन पोर्शन, तो वही बात है, वी डू इट आइदर वी हर्ड द टॉपिक बिफोर और नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। सो ये मैंने जैसे बताया कि हम चॉइस है हमें एग्जैक्टली हमें, जैसे कि मूवी चलता है तो मूवी जब चलता है या फिर क्रिकेट मैच हम देखते हैं तो क्रिकेट मैच देखते वक्त कभी कभी बीच में ऐड आ जाता है, तो जब वो ऐड आता है तो उसी टाइम पे सब लोग अपना जो भी काम है जैसे कि चाय पीना है, पानी पीना है, खाना लेके बैठना है, वो सारी चीज़ें उसी में करते हैं। तो हम सेलेक्ट करते हैं कि इस पार्ट को नहीं सुनना है, इस पार्ट को नहीं देखना है, उस तरीके से सेलेक्टिव लिसनिंग। इग्नोरिंग लिसनिंग, इसको हम पैसिव लिसनिंग भी बोलते हैं। नॉट लिसनिंग एट ऑल, तो हम सिर्फ क्या एक फील दे रहे हैं, जैसे कि टीचर, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं क्लास में, टीचर पढ़ाते हैं लेकिन वो ऐसे तो बॉडी लैंग्वेज से तो ऐसे दिखाएंगे कि बहुत अच्छी तरीके से हम लोग आपको समझ पा रहे हैं, सुन रहे हैं, वो हेड नॉडिंग इस तरह से देंगे, यस वी गॉट इट, बट एक्चुअली they are physically only present in the class and mentally somewhere else. So these type of students never ever try to listen attentively, right? तो इसको हम passive listening बोलते हैं। दिखाते हैं कि अच्छी तरीके से सुन रहे हैं बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। Your eyes may point to the speaker but ears and brain don't. तो आप लोग सिर्फ आंखों से, आपके बॉडी लैंग्वेज से ये दिखाते हो, शो ऑफ करते हैं कि हम लोग सुन रहे हैं बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। और कुछ अदर टाइप ऑफ लिसनिंग है, उसमें डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग है। ये एक प्रकार है जिसमें हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जैसे कि क्या सुनना है क्या नहीं इसको सुनना है। जैसे कि अगर आप यूएस में जाएं वहाँ पे कलर डिस्क्रिमिनेशन है, तो कलर में ब्लैक वाइट एंड ऑल दोज थिंग्स। तो डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग मतलब हम अगर किसी एक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो हम अदर कैटेगरी को हेट करेंगे, राइट। ये एक इनडायरेक्ट उसका डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है सुनते वक्त ही, राइट। क्रिटिकल, जब हमें किसी को सुनने के बाद पॉजिटिव या निगेटिव कमेंट करना है किसी के स्पीच पे या किसी पे स्टेटमेंट पे, तो हम जब उस मकसद से सुनते हैं तो उसको क्रिटिकल लिसनिंग बोलते हैं। इवैल्यूएटिव लिसनिंग, जैसे टीचर स्टूडेंट का परफॉर्मेंस ऑब्जर्व कर रहे हैं और ऑब्जर्व करने के बाद फीडबैक देंगे, बताएंगे एग्जैक्टली कहाँ पे रॉन्ग है, कहाँ पे राइट है, आपने कैसे किया, कॉन्फिडेंस लेवल क्या था, तो उसको इवैल्यूएटिव लिसनिंग बोलते हैं। सिंपैथेटिक लिसनिंग, मतलब अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो गया है कि एग्ज़ाम में कुछ लोग सब्जेक्ट बैक लग गए हैं, तो उसका सुनना, उसको सहानुभूति जताना, उसके प्रति एक संवेदना जागरूक रखना, उसको बोलते हैं सिंपैथेटिक लिसनिंग। और एम्पैथेटिक एक कैटेगरी होता है, ये थोड़ा सिंपैथी से आगे जाके मतलब बहुत ही क्लोज होता है इंसान, एक इंसान दूसरे इंसान से, मतलब सिमिलर स्टोरी। जैसे कि मेरे साथ जो हुआ है सेम उसी बंदे के साथ हुआ है और उसका स्टोरी मेरे स्टोरी जैसा लग रहा है, तो उस टाइम पे मैं अपना स्टोरी समझ के उसको जैसा मेरे साथ हुआ है सेम उसी के साथ हुआ है, तो उसको ज़्यादा मैं रिलेट कर पाऊंगा, उसको एम्पैथेटिक लिसनिंग बोलते हैं। और लास्ट कैटेगरी है बायस्ड लिसनिंग। बायस्ड यानी ये फिर सेलेक्टिव टाइप का लिसनिंग होता है इस तरीके से। और थैंक यू सो मच, एंड एज आई टोल्ड यू दैट दिस वीडियो जस्ट फॉर द sake of first video on the 4 basic skills of English language। और फार्मेसी एंड डिप्लोमा MSBT के जो स्टूडेंट हैं इनका कम्युनिकेशन स्किल्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में लिसनिंग स्किल्स एक टॉपिक है। So you can prepare from this video, and if you need notes and all that, you can contact me. Thank you so much for the listening to me, and if you haven't subscribed yet to my channel, then I request all of you to subscribe my channel and hit the notification button, so you will get that further video on new uploaded videos to you. And thank you so much. Thanks a lot.